Okay. So, guys, we are going to start the like data structure DSA lecture now. So, tell me, how many programs we have completed in last week or last 2 weeks? I think we have done with the important programs of like first of all bubble sort, then insertion sort, then selection sort, then linear search, then binary search, then array operations, array operations, ठीक है, array operations. Before this, malloc, calloc, okay, malloc, calloc, realloc, malloc, calloc, realloc, and free. So, and we have like completed these examples in data structures so far. Am I right? Yes or no? And as a part of the data structures, for listen, as a part of data structures, yeah, I hope you remember the matrix addition, multiplications. I hope you remember this. Am I right? Okay. So this is also you can say that maybe whenever like you will go to the second year, your in your data structure subjects they'll ask you in the beginning only matrix operations, matrix addition, multiplication, transpose, okay, then dynamic memory allocation, then array operations, then linear binary search. So हे प्रोग्राम मी सांगू तुम्हाला का जमलेत सगळे प्रोग्राम? प्लीज रिप्लाय. डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट द प्रोग्राम्स? प्रोग्राम म्हणतोय मी तुम्हाला अल्गोरिदम सांगितलं आय गेस. डू यू वॉन्ट मी टू टाईप द प्रोग्राम? प्लीज रिप्लाय एव्हरीबडी. ज्याला जमलं त्याने रिप्लाय केला, ज्याला नसेल जमत त्याने पण सांगा. नो सर मीन्स व्हॉट? हा जमलेत. ओके. Done. Okay. So at least type done or don't not done, right? Very good. So this is what I want exactly. की program नको म्हणजे काय? की here please understand my intention here. I want to tell you the algorithm. I will explain with the algorithm. Yeah, that's right. And त्याच्यावर तुम्हाला प्रोग्राम जमला पाहिजे. अल्गोरिदम वरनं तुम्हाला प्रोग्राम जमायला हवा. This is what I'm expecting right now. Clear? Okay. So please try every program at least 2 to 3 times. Try every program at least 2 to 3 times. Remember this. Okay. Once again. So, after the bubble sort, selection sort, insertion sort, we have like a few more sorts, sort like a selection sort, not in selection, a merge sort, quick sort, heap sort, radix sort. So there are other sorting techniques are there. But right now, okay, I'll tell you another concept here. Once again. Okay, so, after the bubble sort, selection sort, insertion sort, we have other sorting technique also, like merge sort, then quick sort, heap sort, radix sort. But that techniques I will explain afterwards. Like first you complete this program at least 2 to 3 times. So today I'm going to tell you the another concept here, and then नंतर लागतं आपल्याला basically. So quick sort, heap sort हे concept आपल्याला नंतर लागतील. So right now I will start a new concept, and which is very important concept here. Okay.
So this concept is called as the linked list. This concept is called as what? A linked list. Okay, what is the concept here? Linked list, which is called as a dynamic memory allocation. Linked list is called as what? Dynamic memory allocation. So please understand what is the linked list here. Suppose, okay, suppose if I declare the array here, take an example, integer ARR of 5. So you will get 5 continuous block here. You will get the 5 continuous block over here, like the block 1, 2, 3. I'll repeat here. Okay, so 5 continuous blocks I'll get here. 1, 2, 3, 4 and 5. 4 and 5. So 0, 1, 2, 3, 4. So I will get 5 blocks here. So I'll get a 5 blocks here. Okay. So if you remember this program, array operation. Okay. In the array operation program, initially we have declare the array of size 20, and then only you can insert the element, delete the element, search the element. But the problem was in that program कि अगर तुम लोगों ने एलिमेंट इंसर्ट करते करते अगर 20 को क्रॉस कर दिया तो तुम्हें मैसेज आएगा इनसफिशिएंट मेमोरी. सपोज अगर एरे का प्रॉब्लम क्या है, सपोज अगर हमने एग्जांपल ले लो यहाँ पे कोई कि इफ आई आस्क अ क्वेश्चन हियर कि 1 to 10 lakhs तक कितने सारे प्राइम नंबर है, टेल मी. I want to store the prime number between 1 to 10 lakhs. I want to store the prime number between 1 to 10 lakhs. So, can you tell me the array size? Can you tell me the array size? मुझे 1 to 10 lakhs के बीच में जितने प्राइम नंबर है सारे स्टोर करने हैं. Pranav is saying 200. Okay. No. Right. You don't know the answer. That's right. तो फिर भी अगर रैंडमली जैसे अभी तुमने देखा प्रणव इज सेइंग लाइक 200, ठीक है, तो मैंने क्या किया 200 का एरे ले लिया. कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा चलो नहीं 1000 हो सकते हैं, तो मैंने 1000 का एरे ले लिया. somebody कैन से नहीं यहाँ पे 50 हो सकता है, तो मैंने 50 का एरे ले लिया. या कोई बोलेगा 1001, राइट. तो ठीक है, तो मे बी, बट किसी को मालूम नहीं एग्जैक्ट कितने नंबर है. किसी को मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट कितने नंबर है बिटवीन 1 to 10 lakhs. Between 1 to 10 lakhs. क्लियर. तो प्रॉब्लम क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, अगर तुमने एक एरे ले लिया, अगर तुमने यहाँ पे 1000 का एरे ले लिया और मैक्सिमम प्राइम नंबर कितने है मालूम है, 100 है. मैक्सिमम 100 है. तो अगर तुमने 1000 का एरे लिया तो रिमेनिंग 900 का मेमोरी का क्या करोगे, टेल मी. अगर तुमने 1000 का एरे डिक्लेयर किया एंड देयर आर मैक्सिमम ओनली 100 एलिमेंट्स आर देयर, सो बाकी 900 के साथ क्या करोगे बताओ, इसका क्या करोगे. दैट्स राइट, ये क्या होगा, वेस्ट. दिस इज द वेस्ट ऑफ मेमोरी. ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम किसी ने बोला कि चलो यहाँ पे 50 का ही मेमोरी डिक्लेयर करते हैं. ओके, किसी ने बोला कि आई विल डिक्लेयर द मेमोरी फॉर ओनली 50 एलिमेंट. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, 50 एलिमेंट ही डिक्लेयर किए. क्या किया, यहाँ पे 50 एलिमेंट ही डिक्लेयर किए. तो क्या होगा प्रॉब्लम, शॉर्टेज. वेरी गुड. तो प्रॉब्लम क्या होगा, शॉर्टेज होगा. ओके, अगर तुमने 1000 डिक्लेयर किया तो मेमोरी यहाँ पे वेस्ट हो सकता है. अगर 50 डिक्लेयर कर दिया तो मेमोरी यहाँ पे इनसफिशिएंट होगा. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस. What is the solution for this to avoid this problem, waste of memory और insufficient memory. इसको कैसे सॉल्व करेंगे. बोलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन. कैसे सॉल्व करोगे इसको, डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन. रिमेंबर दिस पॉइंट. इसको कैसे सॉल्व करोगे, डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन. इसका मतलब क्या,
डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या, कि अगर चलो मैंने यहाँ पे जैसे बोला कि पहला नंबर आ गया 2, ओके, तो एक मेमोरी एलोकेट कर दो। नंबर कौन था 2, एक मेमोरी एलोकेट कर दिया, 2 प्राइम नंबर है। नेक्स्ट नंबर आ गया 3, ओके, और एक मेमोरी एलोकेट कर दो, तो नंबर स्टोर कर दिया 3। उसके बाद मैंने बोला 4, 4 प्राइम है क्या, नहीं है। फिर 5 प्राइम है क्या, यस है, और एक मेमोरी एलोकेट करो, एलोकेट वन मोर मेमोरी, ये आ गया 5 के लिए। उसके बाद 6 प्राइम है क्या, नहीं। 7 प्राइम है, यस, एलोकेट वन मोर मेमोरी, allocate here one more memory now, ओके, 7 के लिए मेमोरी आ गया। 8 प्राइम है क्या, नहीं। 9 प्राइम है क्या, ये नो। 10 नो। 11 यस, allocate one more memory, allocate one more memory। तो क्या हो रहा है कि जब भी मुझे जरूरत पड़ रही है तब मैं मेमोरी allocate कर रहा हूँ। 12 प्राइम है क्या, नहीं, डोंट allocate। 13 प्राइम है क्या, यस, allocate the memory, allocate the memory, allocate the memory here, ओके। तो इससे क्या हो रहा है कि जब भी हमें जरूरत पड़ रही है तब हम लोग क्या कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी हमें जरूरत पड़ रही है तब हम लोग क्या कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके। सो एडवांटेज इज दैट नो वेस्टेज एंड नो इनसफिशिएंट मेमोरी, नो वेस्ट ऑफ मेमोरी एंड नो इनसफिशिएंट मेमोरी। जब भी जरूरत पड़ेगी तब मेमोरी एलोकेट करो, ओके। तो बट इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि इसका मेमोरी एड्रेस था 1000, इसका मेमोरी एड्रेस था 1200, इसका मेमोरी एड्रेस था 1500, इसका मेमोरी एड्रेस था 1300, इसका मेमोरी एड्रेस होगा 1400, इसका मेमोरी एड्रेस होगा 2000। तो अगर तुम्हें यहाँ पे मैंने पूछा, चलो तुम्हें दो सिनेरियो देता हूं मैं। अगर मेरे पास एरे है, इफ आई हैव अ एरे हियर 1 2 3 4 5, ओके, ये है 0 1 2 3 एंड 4, ओके। इसके अंदर वैल्यूज रख देते हैं हम लोग। चलो कुछ तो वैल्यू है यहाँ पे, कुछ भी देखो, 10 20 30 40 एंड 50, ओके। इसका एड्रेस है 1000, तो इसका होता है 1004, इसका होता है 1008, इसका होता है 1012, 1012, ये आता है 1016। तो देखो, अगर तुम्हारे पास फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस है, इफ यू हैव एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन, तो यू कैन कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एनी लोकेशन। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो, टू गेट द एड्रेस, we have one formula here. What is the formula? Base address plus size of the data type into index। अगर तुमने पूछा कि मुझे चलो आई वांट द एड्रेस ऑफ 40 का एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस है 1000 प्लस साइज ऑफ इंटीजर इज 4 इंटू इंडेक्स इज 3। तो क्या आएगा इसका आंसर यहाँ पे 1012, करेक्ट है कि नहीं? देखो, ओके, समजते ना सगळ्यांना मी काय करतोय ते? जर तुम्हाला बेस ऍड्रेस माहिती असेल, जर तुमच्याकडे बेस ऍड्रेस असेल तर तुम्ही कुठला पण ऍड्रेस कॅल्क्युलेट करू शकतात. If you have a base address, then you can calculate any address because memory is allocated continuously. Because memory is allocated continuously. If you have an address of first location, then you can calculate address of any location. If you have an address of first location, then you can calculate address of any location using this formula. This is possible because the memory is continuous in order. But suppose, but your memory is not continuous here. I told you the address of first element is 1000. Tell me the address of third element. बताओ कौन सा है? Can you able to predict here कि if I have address of first element and I want the address of third element, tell me what is the address of third element?
No, you cannot predict right now. That's right. Okay, here you cannot predict the address of the next element because you cannot predict the address of next element because memory is random. Yes, that's right, Malcolm. Correct. Because it's a random memory. Because the memory is in a random order. Clear? अगर तुम्हारे पास पहला लोकेशन है तो सेकेंड लोकेशन कहाँ पे? You can't predict this. So how can I remember now? इसको मैं याद कैसे रखूं? यहाँ पे तो मेमोरी शॉर्टेज नहीं होने वाला है. इसका डिसएडवांटेज क्या है कि मुझे मालूम नहीं कि सेकेंड एलिमेंट कौन है. ओके, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर ये पहला एलिमेंट था, दूसरा कौन आया था? 3 आया था सपोज, तो 3 का एड्रेस यहाँ पे लिख दो, तो ये पॉइंट करेगा 3 को. 3 के बाद कौन आया था? 5 आया था. 5 का एड्रेस क्या है? 1500. तो इसको तुम यहाँ पे लिख दो, तो ये पॉइंट करेगा इधर. 5 के बाद कौन आया था? 7 आया था. 7 का एड्रेस क्या है? 1300. इसको लिख दो यहाँ पे, ये पॉइंट करेगा इधर. 7 के बाद कौन था यहाँ पे? 11. तो 11 का एड्रेस कौन है? 1400. ये यहाँ पे लिखो. इसके बाद आया 11 के बाद कौन आया? 13. उसका एड्रेस कितना है? 2000. तो ये पॉइंट करेगा इसको. ओके, तो एवरी प्रीवियस एलिमेंट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट. एवरी प्रीवियस एलिमेंट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट. अभी कल जाके यहाँ पे 14 आ गया. 14 प्राइम है क्या? नहीं. 15 प्राइम है क्या? नहीं. 16 प्राइम है क्या? नो. 17 प्राइम है? यस. 17 आ गया. 17 का खुद का एक एड्रेस होगा कुछ तो भी. जैसे एड्रेस ले लो, चलो 2100. नंबर कौन है? 17. तो 17 का एड्रेस तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा 2100. तो ये पॉइंट करेगा इधर. टेल मी 19 18 प्राइम है क्या? नहीं. 19 प्राइम है? यस. 19 कहाँ पे ऐड होगा बताओ? वेयर शुड आई ऐड द 19 नाउ? वेयर शुड आई ऐड द 19 हियर? टेल मी. This is very important session for your entire engineering, for your career. Remember this. ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, फॉर ऑल योर अदर लैंग्वेजेस, फॉर एंटायर डेटा स्ट्रक्चर्स हियर ऑनवर्ड्स. एवरीबडी लिसन केयरफुली. यहां से आगे सारे लेक्चर्स के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी इमीडिएटली. 19 कहाँ ऐड होगा? 19 in the new memory, but 19 का एड्रेस in a 17. हाँ, that's right आदित्य, करेक्ट है. So you will get the new memory. ओके, यहाँ पे आएगा इसका एड्रेस. सपोज मैं लिखता हूँ 2200. ओके, तो ये एड्रेस, अच्छा ये ऑलरेडी है 2300. 2300 ये पॉइंट करेगा इधर. यहाँ पे 19. यहाँ पे कोई नहीं है तो इसको लिखना है नल. क्या लिखोगे? नल. नल मतलब देर इज नो एलिमेंट आफ्टर दिस. अगर 20 मेरे पास प्राइम है क्या? नहीं. 21 नो. 22 नो. 23 यस. तो मेमोरी एलोकेट होगा. 23 का एड्रेस यहाँ पे चला जाएगा ऐसे, और नल यहाँ पे आ जाएगा. तो इसमें मेमोरी शॉर्टेज होगा क्या बताओ? इस सिनेरियो में मेमोरी शॉर्टेज होगा क्या? मेमोरी वेस्ट होगा क्या? ओके, मेमोरी शॉर्टेज होगा? नहीं. मेमोरी वेस्ट होगा? नहीं. सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड allocate the data. allocate the, तुम्हें याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग आगे मल्टीपल स्टूडेंट भी क्रिएट करेंगे मैलॉक के थ्रू और उनको लिंक करेंगे. ठीक है, तो मैंने पहले बोला था इसके बारे में एक बार. Okay, so here this is called as linked list. Linked list means what? Dynamic memory allocation. Whenever you want, you can allocate a memory, insert your data, and add the address into the previous element in the list. Okay, so इस सिचुएशन में तुम्हारा मेमोरी भी वेस्ट नहीं होगा और मेमोरी शॉर्टेज भी नहीं होगा. ओके, मेमोरी वेस्ट भी नहीं होगा और मेमोरी शॉर्टेज भी नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड एज लिंक लिस्ट. So what is a linked list? Linked list is a dynamic data structure. Linked list is a dynamic data structure. As and when you require a memory, you can allocate it. जब भी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी तब allocate करो. In linked list,
Okay, there is a element which is called as a node. This is called as a node. इसको क्या बोलते हैं, याद रखो, node बोलते हैं, node. सी रिमेम्बर है, ये कंसेप्ट मैं वही बोल रहा हूँ, ये सारे तुम्हारे करियर के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, हर प्रोग्रामिंग में, लाइक इवन यू कैन से दैट ब्लॉकचेन आल्सो एक कंसेप्ट है, किसी ने सुना होगा क्या, आई डोंट नो. ओके, बिग डेटा, हडूप वगैरह एक कंसेप्ट है. ओके, तो इन सब में हमें इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट लगते हैं. ओके ओके, तो इसको बोलते हैं नोड. नोड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डेटा, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा, और इसको बोलते हैं एड्रेस. So in linked list we have a node. Node has two parts. One is the data and one is the address. Address के अंदर अगले नोड का एड्रेस रहेगा, नेक्स्ट के अंदर थर्ड का एड्रेस रहेगा, थर्ड के अंदर फोर्थ का एड्रेस रहेगा. अगर एड्रेस नल है तो इसका मतलब ये लास्ट नोड है लिस्ट के अंदर. अगर एड्रेस नल है तो इसका मतलब दिस इज द लास्ट नोड इन द लिस्ट. कल जाके अगर नया नोड आएगा तो नल को ढूंढना पड़ेगा. याद रखो, ये एल्गोरिथम मैं बता रहा हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Tomorrow, if you are going to add the new node, you need to search here the null address. Okay, तो जिसके पास एड्रेस नल होगा वो लिंक लिस्ट में लास्ट नोड रहेगा. So linked list is a dynamic data structure. Linked list is a dynamic data structure where, okay, every node hold the address of the next node in a sequence. Every node will hold the address of next node in the sequence. If there is a okay, if there, see, the first node in the linked list is called as a start. The first node in the list is called as the start. इसको बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल. विच वेरिएबल? पॉइंटर वेरिएबल. और हेड भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में इसको नाम देते हैं हेड, कुछ बुक के अंदर इसका नाम रहेगा हेड. याद रखो, स्टार्ट और हेड एक ही है. यस स्फूर्ति, पहले नोड का एड्रेस के लिए ये देखो, मैंने वही बता रहा हूं मैं. ये लुक एट दिस. Start will hold the address of the first node. Understood, Spurti? Start will hold the address of the first node in the list. Start कभी भी पहले वाले नोड का एड्रेस को होल्ड करेगा. अगर स्टार्ट के पास नल है, इसका मतलब क्या? बोलो. स्टार्ट के पास नल है, इसका मतलब क्या? कैन यू प्लीज थिंक एंड टेल मी. अगर स्टार्ट के पास नल होगा, करेक्ट, वेरी गुड श्रुति, कब से? यस, नो डेटा, इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है. स्टार्ट के पास अगर नल होगा तो इसका मतलब लिंक लिस्ट इज एम्प्टी. वेरी गुड. अगर स्टार्ट के पास एक ही एड्रेस है, ऑब्वियसली स्टार्ट के पास एक ही एड्रेस होने वाला है, तो स्टार्ट के पास हमेशा पहले का ही एड्रेस रहेगा, पहले वाले के पास दूसरे का एड्रेस, दूसरे के पास तीसरे का एड्रेस. इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लिंक लिस्ट. तो यू कैन यूज द वर्ड स्टार्ट और यू कैन यूज द वर्ड हेड. प्रैक्टिकल्स देखो, मैंने तुम्हें बोला है अभी तुम सारे अभी सेकेंड ईयर में जाओगे, तो जो प्रॉब्लम अभी तुम लोग जावा में फेस कर रहे हो, क्योंकि कॉलेज वाले लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे जाते हैं तुम्हारा सिलेबस, ठीक है. तो उस स्पीड से हम लोग तो नहीं जा सकते ऑब्वियसली. बरोबर आहे का नाही, सांगा मला. तुमच्या जावाच्या असाइनमेंट जेवढ्या फास्ट चाललाय कॉलेजमध्ये, त्या स्पीडने आपण गेलं तर काय होईल का बरं? ओके, म्हणजे कोणाला काही समजणारच नाही इन शॉर्ट, ठीक है. सो वही मैं बोल रहा हूं कि अगले सेमेस्टर में तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स है, C++ है, उसके भी लैब तुम्हें करने हैं, उसके भी प्रैक्टिकल तुम्हें करने हैं, तो वो तुम्हारे अभी से रेडी हो जाएंगे. यू कैन एबल टू डेवलप योर लैब एंड प्रैक्टिकल ऑन योर ओन. एंड दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर. डजंट मैटर यू आर इन विच कॉलेज एंड विच यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस कॉलेज, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि डेटा स्ट्रक्चर के सारे लैब तुम्हें खुद आने चाहिए, C++ के लैब तुम्हें खुद आने चाहिए. ओके, तो इसी के लिए हम लोग प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे लिंक लिस्ट में मैंने जैसे बोला कि लिंक लिस्ट अगर समझ में आएगा तो ही सारे टॉपिक समझ में आते हैं. लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ओके, उसके बाद क्यू, स्टैक, ट्री, ग्राफ, ये सारे लिंक लिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है. ऑल द टॉपिक्स आर डिपेंड ऑन अ लिंक लिस्ट. तो लिंक लिस्ट में मैंने जैसे बोला कि लिंक लिस्ट इज डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर. इन अ लिस्ट द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड एज द स्टार्ट. Start is the root node in the linked list. Okay, start और head ये pointer variable होता है. कौन सा variable? Pointer variable. Pointer hold the address of the first element in the list. Yes, वही मैं बोल रहा हूँ कि start is the pointer variable. Pointer hold the address of the first node in the list. If pointer is null, means there is no linked list. अगर pointer यहाँ पे null नहीं होगा तो मतलब तुम्हारे पास linked list exist है.
क्योंकि शुरू कहां से करना है ना, ऑब्वियसली स्टार्ट से शुरू करोगे या हेड से शुरू करोगे, याद रखो। तो मैंने ये वर्ड से कंफ्यूज मत होना, कुछ बुक्स में इसको हेड नाम देते, कुछ बुक्स में इसको स्टार्ट नाम देते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नोड। नोड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डेटा और एक होता है एड्रेस। दो मतलब ज्यादा भी पार्ट हो सकते हैं, डेटा और भी हो सकता है, किसी का स्ट्रिंग, कैरेक्टर वगैरह, बट फिलहाल मैंने दो ही लिखा है, एक डेटा लिखा है इंटीजर और एक एड्रेस लिखा है। ओके, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग लिंक लिस्ट, याला आपण काय म्हणतो, लिंक लिस्ट। सो एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। एनी क्वेश्चंस हियर? समजलं का हे? प्लीज रिप्लाई। ओके, ठीक है। एनी ठीक है, लिसन। So let's understand now linked list. So linked list is a dynamic data structure. Array is a static data structure. Remember? Okay. So क्या बोला मैंने? Linked list is a dynamic data structure. As and when required, you can allocate the memory. तो इसको फिर से एक बार मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले you have a pointer here. You can say integer or no, not integer. तो नोड को कैसे बनाएंगे हम लोग? नोड को कैसे क्रिएट करेंगे? स्ट्रक्चर नोड इस तरीके से बनेगा। नोड ऐसे ही बनेगा, C++ हो या सी प्रोग्रामिंग हो। आईटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो C++ के थ्रू करते हैं लिंक लिस्ट को, एंड कॉम स्टूडेंट्स को C++ में करना पड़ता है लिंक लिस्ट को, बट दोनों में स्ट्रक्चर कॉमन ही है। यहाँ पे होता है, यहाँ पे आएगा डेटा एंड यहाँ पे आएगा, देखो, स्ट्रक्चर नोड स्टार्ट एड्रेस नेक्स्ट। ये देखो, तो ये होता है डेटा, ये होता है एड्रेस नेक्स्ट। रिमेंबर दिस, ठीक है? इसका मतलब क्या? डेटा, और इसका मतलब होता है एड्रेस। इसका मतलब पॉइंटर है, बट पॉइंटर का डेटा टाइप कौन है? स्ट्रक्चर नोड है। एवरीबडी अंडरस्टूड? ये हो गया मेरा डेटा, और ये होता है कौन? एड्रेस। ये वेरिएबल है, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल, बट दिस इज द पॉइंटर वेरिएबल, बट इसका डेटा टाइप कौन है? स्ट्रक्चर नोड है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज योर नोड। रुको मैं इसको ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये होता है नोड एग्जांपल, इसको दो पार्ट्स है, एक होता है डेटा और एक होता है एड्रेस। तो डेटा जो होता है, ओके, यहाँ पे डेटा रहेगा, यहाँ पे एड्रेस रहेगा। एड्रेस किसका रहेगा? नेक्स्ट नोड का रहेगा। यहाँ पे एड्रेस किसका आएगा? नेक्स्ट नोड का आएगा। तो ऑब्वियसली नोड मतलब ये वाला एरिया, फिर से नोड मतलब कौन? यही एरिया। अंडरस्टूड? नोड मतलब कौन? ऐसा ही एरिया आएगा ना, इसलिए एड्रेस किसका है हमारे पास? नोड का है। इसलिए पॉइंटर का टाइप कौन लिखा मैंने? स्ट्रक्चर नोड लिखा। रिमेंबर दिस, पॉइंटर टाइप कौन है? स्ट्रक्चर नोड है। ओके, रिमेंबर दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास नोड है, डेटा है और एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड है। क्लियर? तो ये होता है डिक्लेरेशन नोड के लिए। तो नोड ऐसा क्रिएट होता है। अभी इसको मेमोरी एलोकेट करने के लिए अगर तुम मैलॉक में तुम मैलॉक यूज करोगे और साइज ऑफ लिखोगे स्ट्रक्चर नोड का, अगर सी में करोगे तो डिप्लोमा स्टूडेंट को भी सी से ही करना होता है। अगर C++ में करते हो तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जैसे न्यू नोड, यहाँ पे भी न्यू है ऑलरेडी, न्यू इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा न्यू से कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू वर्ड आएगा एंड यहाँ पे नोड नाम का क्लास होता है। ये C++ का सिंटैक्स है, क्योंकि ये तुमने सीखा नहीं अभी तक सीपीपी में, पॉइंटर के लिए कैसे मेमोरी एलोकेट करना है वो। तो ये C++ में सिंटैक्स होता है, ये कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास करेगा, बट दिस इज द सिंटैक्स इन C++, दिस इज द सिंटैक्स इन सी प्रोग्रामिंग। दोनों का काम एक ही है। ये आएगा C++ का सिंटैक्स, क्योंकि पॉइंटर के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट होता है C++ में, जावा के जैसा। और ये हो गया सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स, टू अलोकेट द मेमोरी फॉर द नोड। करते चलें ना? अगर इसका मेमोरी एलोकेट करना होगा तो सी में ये सिंटैक्स होगा, ओके, और जावा में ऐसे होगा। पाइथन में करना है तो उसका भी अलग, पाइथन में भी होगा तो क्लास लिखना पड़ेगा। ओके, पाइथन में भी कर सकते हो तुम लोग, तो फिर क्लास लिखना पड़ेगा।
ओके एंड देन इवन जावा में भी क्लास लिखना पड़ेगा, तो यू कैन राइट दिस कोड इन एनी लैंग्वेज. Okay, but right now I'm telling you in C programming language. Right now I'm telling you in a C programming language. Okay, so देखो क्या करना है. तो हम यहाँ पे आ गए. Let's start the program now. File new project. Linked list. फक्त इंट्रोडक्शन देतोय. प्रोग्रामला वेळ लागेल, उद्या मी प्रोग्राम करेल. Today I'm just giving you the introduction. Linked list.